أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. خیر و برکت کے لیے اور پڑھیے درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے کل اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج کربلا معلیٰ کے اس خونی منظر کا ماحول آپ کے سامنے پوری کوشش کر کے میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے آپ کا دل شہیدان کربلا کی محبت سے چور ہو اور آپ اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو بیٹھائیں کہ امام حسین ہی کے نقش قدم پاک پر چلنے میں زندگی کے لیے معراج ہے. اس حیات کے لیے ترقی دنیا اور آخرت میں اسوہ امام حسین ہی پر ہے. لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار سن لیجئے. دل مدینہ بنا لیجئے، دل مدینہ بنا لیجئے، رحمتوں میں نہا لیجئے. یا رسول اللہ، ہوگا قدموں میں سارا جہاں، مصطفیٰ کو منا لیجئے، مصطفیٰ کو منا لیجئے، رحمتوں میں نہا لیجئے. دل مدینہ بنا لیجئے، اور ان سے ان سے کسی سے نہیں، ان سے ان سے کسی سے نہیں، لو نبی سے لگا لیجئے، لو نبی سے لگا لیجئے، دل مدینہ بنا لیجئے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ اور اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ نہ کہو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، ہاں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اگر سمجھنا چاہو تو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اللہ کے راہ میں مارے جانے والے اللہ کے مقبول بندے وہ زندہ ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ رب تعالیٰ اپنی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے زندگی کا اعلان کر رہا ہے کہ میری راہ میں جو قتل کیے گئے ان کو زندگی دی جا رہی ہے۔ قتل سے پہلے بھی ان کو زندگی دی گئی ہے اور قتل کرنے کے بعد بھی ان کو زندگی مل رہی ہے۔ وہ جب دنیا میں تھے تو بھی ان کے لیے زندگی ہے، اور رب کی راہ میں قتل ہو گئے تو بھی ان کے لیے زندگی ہے۔ بہت صحیح کہا اجمل سلطان پوری نے کہ قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، اور مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی، زندگی ٹھہر گئی۔ مرد مومن کو قبر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کی زیارت ہوگی، اس کی زندگی وہیں اپنے مقام پر ٹھہر جائے گی، اس کے لیے زندگی ہی زندگی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میری راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ رب کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، ان کی لاش زمین پر تڑپ جاتی ہے، ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، مردہ نہ کہا جائے، نہیں، تب پھر مردہ کسے کہا جائے؟ آخر جو بستر پر لیٹے لیٹے مر جائے اسے ہی مردہ کہا جائے؟ اللہ کی راہ میں یہ کاٹا جا رہا ہے، اسے مردہ نہ کہا جائے؟ نہیں، پابندی لگ رہی ہے کہ اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے ہو، تب کیا کہا جائے؟ تو رب اجازت دیتا ہے، فرمان جاری ہوتا ہے اس کی طرف سے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ پروردگار عالم، ہم نے مان لیا، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے تیرے فرمان پر کہ تیرے وہ بندے جو تیری راہ میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن کیا ان کی زندگی ہم سمجھ پائیں گے؟ ہماری سمجھ میں آئے گی ان کی زندگی؟ تو رب فرماتا ہے وَلَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ شعور کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، یہ نہیں آیا ہے کہ وَلَا تَعْلَمُونَ، تم جان نہیں پاؤ گے، یعنی تم اپنی عقل کی بنیاد پر ان کی زندگی کو سمجھنا چاہو تو نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن شہداء کی زندگی کو رب تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی سمجھ میں دے دیتا ہے، وہ تو سمجھ بھی جاتے ہیں، اسی لیے تشعرون کا لفظ ہے۔ شعور کا مطلب ہوتا ہے اپنے عقل و ادراک سے کسی چیز کو معلوم کرنا، تو تم اگر اپنی عقل و ادراک سے کسی چیز کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو نہیں معلوم کر پاؤ گے، لیکن رب بتا دے تو تجھے علم ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ خالص نیت سے رب کی راہ میں مارا جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیے، کربلا کا نقشہ عجیب پایا جا رہا ہے اور کربلا کی جنگ عجیب پائی جا رہی ہے۔ کربلا میں جو 22,000 فوج اتری ہے عمرو بن سعد کے مقابلے میں، عمرو بن سعد کے ساتھ امام حسین کے مقابلے میں، وہ فوج کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہی تھی، لیکن وہ فوج کا دستہ مکمل صداقت سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ سارے کے سارے لوگ جاتے اور اسلامی دشمنوں سے جنگ کرتے تو انہیں شہادت کی منزل ملنی تھی، لیکن خدا کے راز اور بھید کو سمجھتے چلیے کہ وہ ادھر آ کر کے صداقت کے ماحول سے ٹکرا کر کے اپنے
आप को जहन्नम का परवाना ले लिया करते हैं। ये मशीयत इलाही है, यही तो कुदरत के भेद हैं जो कोई नहीं समझ पाता है कि रब कौन किसके साथ करने वाला है। जरा मुलाहजा फरमाइए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंग क्या है। हजरत इमाम हुसैन ने जंग नहीं की है, इमाम अली मकाम तो दफा कर रहे थे। यही वजह है प्यारे कि जब हजरत इमाम अली मकाम का सारा नक्शा हम सामने रखते हैं और सामने रख करके जब तज्जिया किया जाता है तो इमाम अली मकाम ने करबला की सरजमीन पर 10वीं रात में एक और मशवरा तो रखा था, अम्र इब्न साद के सामने रखा था कि अम्र इब्न साद एक काम करो, तुम अगर तुम चाहते हो कि जंग ना हो तो मैं कब चाहूंगा कि लड़ाई हो, मैं तो मेहमानों के तौर पर बुलाया गया हूँ। कहा मेहमान के तौर पर आप बुलाए गए हैं। अम्र इब्न साद देखो, आपने थैला मंगवाया खतों का और सारे खतों को अम्र इब्न साद के सामने उलट दिया, कहा तुम पढ़ लो, देखो ये है कि नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ ना रहें तो हमें इजाजत दे दो, हम इस्लामी सरहद पर कहीं और चले जाएं, या तो तुम हमको जाने दो, हम यजीद के पास जाकर के उससे गुफ्तगू कर लें। अम्र इब्न साद पूरी कोशिश कर रहा था कि लड़ाई न होने पाए, हुसैन इब्न अली पर तलवार न उठने पाए, लेकिन दुनिया का भूत ऐसा सवार था कि उन जालिमों ने दुनिया के भूत के गलबे में आकर के अपनी आकबत को बर्बाद कर डाला। हजरत इमाम अली मकाम के खिलाफ वो तलवार बुलंद ही कर डाले। कुरान ने इसीलिए तो निशानदेही कर दी है, वो असरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीमा है, फ़इन्नल जहीमा है अलमावा, कि जो दुनियावी जिंदगी ही को तरजीह दे उसका ठिकाना जहन्नम है। हजरत इमाम हुसैन से जब अम्र इब्न साद से बात होने लगी थी तो इमाम अली मकाम ने फरमाया, अम्र इब्न साद कहा हाँ, कहा ये बताओ यजीद बातिल पर है कि हक पर है। कहा यजीद बातिल पर है। कहा फिर उसका साथ छोड़ दो। कहा हमारे मकानात को जलवा देगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया हम मकान बनवा देंगे। कहा ये बताओ कि उसने हुदूद इलाहिया को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। कहा शरीयत इस्लामिया के खिलाफ बहुत कुछ किया है। कहा तो उसका साथ क्यों देते हो। कहा हमारे बाल बच्चे खिंचवा लिए जाएंगे, हमारी मालो मता सब लूट ली जाएगी। इमाम अली मकाम ने कहा मैं इससे बेहतर तुम्हें अता कर दूंगा। आप जरा देखिए, वो ये नहीं कहता है कि हुसैन इब्न अली मैं आपके मुकाबले में आया हूँ, यजीद का मामला सामने है। वो अपनी जायदाद को सामने रख रहा है, अपने बाल बच्चों को सामने रख रहा है, अपनी दुनिया को सामने रख रहा है। हुसैन अगर मैं तलवार म्यान में कर लेता हूँ तो मेरी दुनिया चली जाएगी, मेरा मकान चला जाएगा। यही तो इमाम हुसैन समझा रहे हैं कि जब दीन और दुनिया दोनों सामने हो जाए और दुनिया अपना मुंह फैला करके तुम्हारे दीनी जोश को निकालना चाहे तो तुम हमारे नक्शे कदम पर चल देना और हमारी जिंदगी को याद कर लेना। दुनिया को तुम ठोकर से उड़ाते चले जाओगे, दुनिया को पामाल करते हुए चले जाओगे। ये दुनिया चाह रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मिशन को मैं अपने जाल में फंसा लूं, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने और रसूल कौनैन के सैयदाइयों ने साबित कर दिया नहीं नहीं, दुनिया को हम इस तरह से पांव से मार दिया करते हैं। ये बात भी तो आई थी हजरत इमाम अली मकाम के सामने। इमाम अली मकाम के ये के बाद सारे रफ़क़ा और सारे दोस्त अहबाब शहादत का जाम नोश कर लिए। इमाम अली मकाम की तनहा शख्सियत रह गई है। हजरत इमाम अली मकाम तनहा है। 10 मुहर्रम की तारीख है, 10 मुहर्रम का दिन गुजरता चला जा रहा है। ये के बाद सारे लोगों को शहादत नसीब हो गई है। इमाम अली मकाम आखिरी बार अपने खेमे के अंदर आए। अंदर आने के बाद अपनी बहन हजरत ज़ैनब को बुलाया और बुलाने के बाद सब्र की तलकीन दी। हजरत शहरबानों को बुलाया, उन्हें भी सब्र का पैगाम दिया। उम्मे रबाब को भी बुलाया, उन्हें भी सब्र का पैगाम दिया। उम्मे लैला को भी बुलाया, उनको भी सब्र का पैगाम दिया। हजरत सकीना लिपट जाती है इमाम अली मकाम से। इमाम अली मकाम में सारी लाशें तो पड़ी हुई हैं, अब कौन हमारी हिफाजत करने के लिए रह जाएगा। सारी तलवारें आपके लिए चमक रही हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपनी शहजादी को सब्र की तलकीन दी। कुरान की आयत तिलावत कर रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। ए बेटी पढ़ो इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत सकीना रो रही है। आप अंदाजा लगाओ, आपके घर की छोटी बच्ची आपसे प्यार और मोहब्बत में रोने लगे, आप पर कोई जुल्म हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी आप पर हो तो साहिबे औलाद जो हैं वही लोग इस गम को समझ पाएंगे। आओ जरा इमाम हुसैन के गम को करबला के मैदान में देखो। जवान बेटे की लाश तड़प गई है, भतीजे की लाश तड़प गई है। खेमे की तरफ लोग बढ़ते चले आ रहे हैं, तलवारें चमक रही हैं। इख्तिदार का भूत उन लोगों पर ऐसा सवार है। इमाम अली मकाम सारी हुज्जतें उनके सामने रख रहे हैं कि कयामत के दिन तुम्हें कोई बहाना न मिले, कयामत के दिन तुम्हारा कोई मामला सामने न आने पाए, कयामत के दिन तुम्हारे लिए कोई उज्र न रहे कि हमको यह नहीं मालूम था। सारी बातें इमाम अली मकाम बता रहे हैं और अपने खेमे में सब्र की तलकीन भी कर रहे हैं। सब्र की तलकीन करने के बाद इमाम अली मकाम उठे और उठने के बाद घोड़े को लिया, तलवार हाथ में संभाली। तब तक एक आवाज पीछे से आती है, ए मेरे सरताज ठहर जाओ। इमाम अली मकाम ने पीछे मुड़ करके देखा तो आपकी बीवी हजरत शहरबानो थी। ये वही शहरबानो जिनका निकाह हजरत उमर फारूक आजम ने आपके साथ किया था। ये वही शहरबानो हैं जो ईरान के बादशाह की शहजादी हैं। हजरत शहरबानो ने कहा आप हुजूर आप आ जाइए।
चाहिए। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया अब मुझे खेमे की तरफ ना बुलाओ, अब तुम लोग अपने आंसुओं को मेरे सामने ना गिराओ, अब मुझे अल्लाह की रजा पर जाने दो, अब अल्लाह की मशीयत जो है वो हो करके रहेगी, मुझे अब ना पीछे लौटाओ। आपने हजरत ज़ैनब का वास्ता दिया, आपकी माँ का वास्ता दिया। हजरत इमाम अली मकाम माँ का वास्ता सुन करके घोड़े से उतर पड़ते हैं, फिर खेमे में अपने कदम को रखा। कदम को रखने के बाद कहा बताओ क्या कहना चाहती हो। हजरत शहरबानों ने हाथ पकड़ करके कहा जरा आप अपने इस बच्चे को भी देख लें। इमाम अली मकाम के शहजादे हजरत अली इब्ने हुसैन, जिनको हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, शिद्दत बुखार में मुब्तला हैं। शिद्दत बुखार से वो उठ नहीं पा रहे हैं, सहन उनकी जबान बोलने से कांप रही है, उनका सारा जिस्म कांप रहा है। हजरत इमाम अली मकाम ने अपने बच्चे के सर पर अपने दस्ते शफकत को रखा, दुआएं देने लगे। हजरत इमाम अली मकाम के हाथ के सुकून को जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिलता है तो पूरी ताकत समेट करके बैठ जाते हैं और अब्बा के कदमों पर अपना सर रखना चाहते हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया मेरे शहजादे अब तुम घबराओ नहीं, तुम्हें अभी बहुत रोना पड़ेगा। ए ज़ैनुल आबिदीन हम तो अब थोड़े देर के लिए और मेहमान हैं, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन हुसैन की सारी नियाबत का कारनामा तुम्हें अंजाम देना पड़ेगा। बेटा आओ मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। बाप ने बेटे को सीने से लगाया, जो अमानत थी अपने बेटे को सौंप दिया। बेटा तड़प जाता है अब्बा हुजूर आपके बाद मेरी जिंदगी कैसी रहेगी। एक बेटा अपने सामने अपने बाप को कत्ल हुआ कैसे देख सकता है। अब्बा हुजूर भले मैं बुखार की शिद्दत में हूँ, लेकिन मुझे चाहे घिसट करके जमीन पर जाना पड़े मैदान में कूफियों गद्दारों के सामने, अब्बा हुजूर मैं भी कुर्बान होना चाहता हूँ, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम अली मकाम, सारी दुनिया के मर जाओ मावा, सारी दुनिया को सहारा देने वाले आका, जुल्म बर्बरियत के चंगुल से बचाने वाले इमाम हुसैन अपने बच्चे से इरशाद फरमाते हैं ए अली ए ज़ैनुल आबिदीन सुनो सुनो बेटा, नस्ल मुस्तफा की अफजाइश तुम्ही से होगी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम बज़ाहिर तुम्ही से नशर होगा। अगवास अक्ताब अब्दाल तुम्हारी पुश्तों से निकलेंगे। ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। बड़ी तसल्ली देते हैं, सुला देते हैं। इमाम अली मकाम के शहजादे को बड़ा बुखार है, इतना बुखार है, इतना बुखार है कि हाथ रखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आग के शोले पर हाथ रख रहा हूँ। इमाम अली मकाम ने दुआ की और उसके बाद वहां से उठ करके चलने लगे। बहन ने आपको थाम लिया, भाई जान ठहर जाओ। जब सारे लोग करबला के मैदान में जा रहे थे दुश्मनों के सामने, तो आपने उनको सहारा दिया था। ए हुसैन इब्ने अली अब आपका चेहरा ये आखिरी बार आपकी बहन देख रही है, ठहर जाओ। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं बहन खेमे के अंदर चली जाओ, पर्दे का माहौल मत तोड़ना। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे बाद तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है, लेकिन जब तक हुसैन जिंदा है, हुसैन का ये फार्मूला कायम रहने दो कि हुसैन की जिंदगी में हुसैन की बहन का आंचल किसी ने नहीं देखा था। हुसैन की जिंदगी में हुसैन की बहन खेमे के बाहर नहीं आई थी। हुसैन जब तक थे तब तक लोगों की आहो फगा बुलंद तो खेमे के अंदर होती रही। वो खून का आंसू पी पी करके सब्र करते रहे, लेकिन दुनिया देखती रहेगी और दुनिया में ये तारीख मुरत्तब हो जाएगी कि हुसैन ने आहो फगा करने से रोक दिया था और सब्र का पैगाम दिया था और कुरान की आयत पढ़ पढ़ करके सुना रहे थे इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ए ज़ैनब अब तुम रो नहीं। हज़रत इमाम अली मकाम आगे बढ़े। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ अपने सर पर बांधा, जुल्फ़िकार तलवार हजरत अली की अपने हाथ में ले लिया। हजरत इमाम हसन का पट्टा अपने कमर में बांधा, अपने माँ का दुपट्टा अपने सर पर बांध करके और फिर उसको हाथ में ले करके दुआ मांगते हैं, तलवार ले लेते हैं। इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार होने लगे। बहन ने नीचे से हाथ लगा दिया, मेरे भाई रकाब पर सवार हो जाओ, अपना पांव रख लो। इमाम अली मकाम पांव रख करके जब शाहाना सज धज के साथ करबला के मैदान में खड़े हुए, कूफियों की तलवार बुलंद हो गई। हुसैन लड़ाई करोगे कि यूं ही तलवार को जमीन में डाल दोगे? इमाम अली मकाम ने फरमाया ना मैं जंग करूंगा, ना मैं यूं ही तलवार को अपने जमीन में डालूंगा। हुसैन तुमने सब कुछ कटा दिया है, कौन सी बात रह गई है? यजीद को अमीर तस्लीम कर लो, इसमें बात ही क्या रह गई है? इमाम अली मकाम ने फरमाया ये हो ही नहीं सकता है, मैं यजीद को अमीर कैसे तस्लीम कर लूं? तुमने क्या समझ लिया है? और मैं तो ये अर्ज करता चलूंगा
کروں گا پیارے، امام حسین کیسے تسلیم کر لیں یزید کو اپنا امیر، اور اس کی خلافت کو خلافت الہیہ کیسے تصور کر لیں؟ ذرا دیکھو تو امام علی مقام پر اللہ کے رسول کے توسل سے قیامت تک درود بھیجا جانے والا ہے۔ امام علی مقام پر اللہ کے حبیب کے توسل سے سارے مومنین درود پڑھنے والے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو حضرت امام حسین کو باغی قرار دے رہے ہیں اور حکومت کا غدار قرار دے رہے ہیں، آج بھی جب وہ نماز میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے التحیات بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور درود شریف جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نماز میں جب درود پڑھ رہے ہو تو یہاں درود بھیج رہے ہو، اللہ درود نازل فرما محمد پر اور درود نازل فرما ان کی آل پر۔ ان کی آل کون ہے؟ تمہیں کہنا پڑے گا حسن ان کی آل ہے، حسین ان کی آل ہے، فاطمہ ان کی آل ہے، ان کے شہزادے ان کی آل ہے۔ قیامت تک لوگ نماز میں جب درود نبی پر بھیجیں گے تو نبی کے توسل سے ان کی آلوں پر بھی درود بھیجا جاتا رہے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا تجزیہ کرو حسین کی زندگی کو اور دیکھو حسین کی زندگی کو، دیکھو امام حسین کے کارنامے کو، دیکھو امام حسین کی تحریک اور مشن کو۔ امام حسین نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ حضرت امام علی مقام ہے۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے آخری خطبہ دیا تھا، اپنے نسب کو بھی بیان کر دیا تھا، سبب کو بھی بیان کر دیا تھا، رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جو ان کو عزت و عظمت حاصل ہے وہ سب کو بیان کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے سنا، سننے کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا، تلواریں آگے بڑھنے لگی، لوگ آگے بڑھنے لگے۔ امام علی مقام کو اب دفاع ضرور کرنا ہے۔ حضرت امام علی مقام پر جب تیر آتا ہے، آپ کے امامہ شریف میں تیر لگا، تیر کو کھینچ کر کے پھینک دیا، تب تک ایک تیر داہنے طرف سے آیا، اسے بھی نکال کر کے پھینک دیا، تب تک ایک تیر بائیں طرف سے آیا، اسے بھی نکال کر کے پھینک دیا۔ جب تلوار لے کر کے وہ آگے بڑھے تو امام علی مقام بھی تلوار لے کر کے آگے بڑھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 22,000 لشکری ہیں، ایک ایک مٹھی کنکر لے کر کے پھینکیں تو ایک آدمی دب جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ ایک یلغار آتا ہے حضرت امام علی مقام کی طرف، لیکن علی کا شیر مارتا کاٹتا چلا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پا رہا ہے۔ ان سارے لوگوں نے گھیرا بنا لیا، اور گھیرا بنانے کے بعد تیروں کی بارش کرنے لگی، کنکروں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کیا، گرد و غبار اڑانا شروع کر دیا۔ آج بھی مزاج آدمیوں کا ہے کہ پہلے جب اس طرح سے اسلحے نہیں تھے اور لاٹھیاں چلائی جاتی تھی، تلواریں چلائی جاتی تھی، تو سرخ مرچ کو پیس کر کے وہ رکھ لیا کرتے تھے اور اسی کو میدان میں اڑا دیا کرتے تھے، دشمن کی آنکھوں میں پڑ جائیں، ان کی آنکھیں بند ہو جائیں، ہم حملہ کر لیں۔ امام علی مقام پر گرد و غبار ڈالا جا رہا ہے، امام علی مقام پر کنکریاں پھینکی جا رہی ہیں، تیروں کی بارش کی جا رہی ہے، ہر کوئی یزید کو اپنا حامی بتانے کے لیے، ایک دوسرے کو گواہ کرنے کے لیے تیر برسا رہا ہے۔ جو آگے بڑھے ہیں وہ تلوار چلا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے عرض کیا، واہ محمدا، واہ محمدا، یہ میرے آقا میری خبر لو، اے میرے سرکار میری خبر لو، نانا جان آپ کا حسین کربلا کے میدان میں ہے، یہ ظلم و بربریت کا ماحول ہے میرے پیارے۔ آخر امام حسین پر اتنی تلواریں کیوں برسائی جا رہی ہے؟ امام علی مقام کو اس طرح سے کیوں زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ پوری دنیا اپنی طاقت سمیٹ کر کے لگی ہوئی ہے، حسین اکیلے رہ گئے ہیں۔ اگر حسین کو آج دبا دیا گیا تو قیامت تک اسلام کا قانون دب جائے گا، اور حسین نہ دبا تو اسلام کا قانون نہیں دبے گا۔ آئینے مردہ، آئینے جمع مردہ، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اس امام کو کیسے دبایا جا سکتا ہے جس امام نے نبی کی انگلیوں کو چوسا ہے، جس امام نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش لیا ہے، جس امام نے نبی کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے، جس امام کی تربیت 7 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، جو 7 سال نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا ہو، آخر ذرا دیکھو تو اس کا ہاتھ لیا جا رہا ہے،
در حقیقت حسین کا ہاتھ نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ حسین کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے پاک کو جب بیعت کیا تھا بیعت رضوان پر، تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو فرمایا تھا یہ ان کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ خلیفہ سوم کے ہاتھ کو لیے اپنا ہاتھ فرما رہے ہیں یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہاں تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حسین تو میرے جسم کا ٹکڑا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ہاتھ ناپاک کے ہاتھ میں کیسے چلا جاتا؟ اچھا، یزید کا جرم کیا تھا؟ یزید کا جرم تھا، سننے میں بات آئی تھی کہ کبھی کبھی وہ شراب پی لیتا ہے، وہ نماز کا تارک ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ لونڈیوں کے گانے سنتا ہے، وہ شکار کا عادی ہے۔ یہی سارے اس کے قبیح افعال تھے کہ امام حسین نے یہ کہا تھا کہ اس نے نماز کا انکار کر دیا ہے، یا یہ الزام تھا کسی کا کہ قرآن کو ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے، یا یہ تھا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی نہیں مانتے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سیرت پر ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا، پوری تاریخ گواہ ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ نعرہ لگاتے ہو حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا، حسین کا دامن نہ چھوڑنے کا مطلب ہے نماز نہ چھوٹنے پائے، روزہ نہ چھوٹنے پائے، استطاعت ہو جائے تو حج نہ چھوٹنے پائے۔ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب کی بوتل ہاتھ میں نہ لگنے پائے۔ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائیوں کے طرف قدم کو مت بڑھاؤ۔ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ تم نماز اخیر دم تک نہ چھوڑو، تمہاری کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہی ہے، اب اگر اس پر تمہاری زندگی جا رہی ہے تو حسینی ہو، اور اس کے خلاف تمہاری زندگی جا رہی ہے تو تم خود فیصلہ کر لو کہ دعویٰ تو کرتے ہو حسینی بننے کا، اور ذہن و فکر تمہارا کس طرف جا رہا ہے، آپ خود فیصلہ فرما لیں۔ حضرت امام علی مقام نے سارے لوگوں کو پیغام دیا، اس کو بھی ان لوگوں نے سنا، تلواریں چل رہی ہیں۔ امام علی مقام کے مقدس جسم پر 72 زخم لگے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کے جسم پر 72 زخم لگ گئے ہوں تیر و تلوار کے، اس کا حال کیا ہوگا؟ موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ رہ جائے گا؟ وہ کیسا ہوگا جس کے اندر بولنے کی طاقت ہو، جس پر 72 زخم لگے ہوں؟ ایک گولی سنسناتی ہوئی جاتی ہے، ایک زخم لگتا ہے، پورے ہاسپٹل کا عملہ لگ جاتا ہے، مگر اسے ہوش میں نہیں لا پاتا، اس کی زندگی چلی جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ہونے پر جسم کا ایک حصہ ٹوٹا کہ پھر اس سے اب کچھ پوچھ نہیں پا رہے ہو، جلدی اسپتال میں پہنچایا جائے۔ امام علی مقام کے جسم اطہر پر 72 زخم لگے ہوئے ہیں۔ آخر 72 زخم کیوں لگے؟ اس پر جب بھی فلسفیانہ طور پر نگاہ ڈالو تو کربلا کے میدان میں آپ کے 72 تھے۔ امام علی مقام نے بتا دیا، اے 72، میں تمہارا سارا غم اپنے اوپر لے رہا ہوں، تم سب کو تو زخم لگے ہیں، مگر سارے 72 کا درد ہمارے اوپر آ رہا ہے، سارے 72 کا زخم میں برداشت کر رہا ہوں۔ اچھا، 72 زخم لگے تھے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں پیارے، زخم 72 ہیں اور 72 زخم تکلیف دے رہے ہیں۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی علی 73 ملتن کلہم فی النار الا ملتن واحدہ، میری امت میں عنقریب 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ ذہن مل گیا، اشارہ مل رہا ہے کہ 72 سے تکلیف ہوگی۔ 72 زخم امام علی مقام کو لگے ہیں، امام کو تکلیف ہو رہی ہے، 72 فرقوں سے اسلام کو تکلیف پہنچے گی۔ یہی سے ذہن مل جا رہا ہے کہ 72 زخم جیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایسے یہ 72 فرقے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ امام علی مقام کہہ رہے ہیں، میں تنہا ہوں، تم 72 زخم ہو، حسین برداشت کر لے گا۔ ناجی فرقہ کہہ رہا ہے، میں تنہا ہوں، تم 72 ہو، ہم ساری مصیبتیں برداشت کر لیں گے۔ اس ذہن کو بھی اس معاملے کو بھی اپنے ذہن میں رکھو۔ امام علی مقام پر 72 زخم لگے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے پاک میں ایک تیر دشمن کا آ کر کے لگ گیا۔ تیر کا لگنا تھا، امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ آپ کا گھوڑا بھی لہو لہان ہے، آپ کا گھوڑا بھی زخموں سے چور ہے، زخموں سے چور گھوڑا ہناتا ہوا ایک طرف ہو جاتا ہے، اس پر بھی تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام علی مقام زمین پر تشریف لے آئے، ان سارے نابکاروں نے، ان سارے پلیدوں نے گھیر لیا
امام علی مقام کو گھیرے میں لے لیا. اب کون ہے جو امام علی مقام پر تلوار چلائے گا؟ کون ہے جو امام علی مقام کے سر اقدس کو تن سے جدا کرے گا؟ زمین کانپ رہی ہے، سورج اپنی شعاؤں کو چھپا لیتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. اٹھاؤ کتابوں کو پڑھو کہ شہادت امام حسین کے دن سورج چھپ گیا تھا کہ نہیں چھپ گیا تھا. امام حسین کی شہادت کے دن ہوا رک گئی تھی کہ نہیں رکی تھی. امام حسین کے شہادت کے درختوں کی لکڑیاں توڑی جاتی تو خون نکل رہے تھے کہ نہیں نکل رہے تھے. امام حسین کے شہادت کے دن پتھر اٹھایا جاتا تو خون نکل رہا تھا کہ نہیں نکل رہا تھا. امام حسین کی شہادت کے دن صبح سے لے کر کے شام تک کوئی پرندہ بولا نہیں تھا اور کوئی پرندہ اڑا نہیں تھا اپنی جگہ سے. امام کا غم اتنا بڑھایا جا رہا ہے. جب حلق کا خون نکلا تھا، جبریل کو حکم ہوا میرے محبوب کے نواسے کا خون لے لو، افق پر پھینک دو. افق پر پھینک دیا جاتا ہے، وہ خون شفق کی سرخی میں نمایاں ہو جاتی ہے اور شفق کی جو سرخی دکھائی جا رہی ہے یہ قیامت تک دیکھتے رہیں گے لوگ. امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے رہیں گے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، حضرت امام علی مقام کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. نظام رک جاتا ہے، فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، مولا ارشاد ربانی ہوتا ہے، میرے فرشتوں میں نے تم پر جو بنی آدم کو فوقیت دی ہے، بزرگی اور سرفرازی دیا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، میں نے بنی آدم کو بزرگی کا تاج پہنایا ہے. میرے فرشتوں دیکھ لو، میں بنی آدم سے جو جو امتحان لیتا چلا جا رہا ہوں، بنی آدم میں میرا جو مخلص بندہ ہے وہ امتحان دیتا چلا جا رہا ہے اور امتحان کے سارے پرچے حسین پر ڈال دیے جا رہے ہیں. حسین نے آج انسانیت کو بزرگی کا تاج پہنا دیا. لقد کرمنا بنی آدم. حضرت امام علی مقام کی شہادت کا وقت آ گیا. یہ دشمنان گھیرے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے بھوت امام علی مقام پر تلواریں برسانا چاہتے ہیں. امام علی مقام کے قریب پڑھا شمر ذل زوشن، یہ وہی ناپکار شمر ہے، یہ وہی مردود شمر ہے جس نے ابن زیاد کو بھی کہا تھا. ایک ایسا پلیٹ فارم آیا تھا ابن زیاد کے لیے بھی کہ جب عمرو بن عاص نے خبر پہنچائی تھی کہ ہم نے حسین ابن علی کو منا لیا ہے، وہ دمشق یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو ابن زیاد نے یہ کہا تھا فوجیوں سے کہ اگر وہ یزید کے پاس جا کر کے اس کی بیعت کر لے رہے ہیں تو بات بن جا رہی ہے، پھر جنگ و جدال کرنے کی ضرورت کیا ہے. اسی شمر ذل زوشن مردود نے مشورہ دیا تھا، امیر کوفہ، گورنر کوفہ، تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تمہاری تاریخ بہادری کی کیسے لکھی جائے گی؟ اسی ظالم نے مشورہ دیا تھا، اسی ظالم کے اوپر وہ بھوت سوار تھا. اسی ظالم کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوڑھی کتا میرے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ ڈبو رہا ہے. بھوت سوار تھا. اسی ظالم کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوڑھی کتا میرے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ ڈبو رہا ہے. اللہ اللہ. حضرت امام علی مقام کے قریب جب یہ ظالم بڑھا اور امام علی مقام کے گلے پر اپنا ہاتھ لگایا، دوسرے ہاتھ سے تلوار کو بلند کیا، امام علی مقام نے اپنی ساری طاقت کو سمیٹا اور اپنی پیشانی کو سجدہ میں کر لیا. امام علی مقام نے فرمایا خبیث دور ہو جا. میرے نانا نے سچ فرمایا تھا کہ ایک کوڑھی کتا میرے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ ڈبوئے گا. نانا کی بات کو یاد کرنے کے بعد امام حسین کے آنسو گر گئے. اپنی پوری طاقت سمیٹنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدہ میں کر لیا. حسین دنیا سے جائے تو سجدہ کی شکل میں جائے. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدے شبیری. یہی امام حسین کا جو آخری سجدہ ہے، سارے ساجدوں کے لیے تاج ہے، ساری سجدہ گاہوں کا محافظ ہے، سارے لوگوں کی مغفرت کی ضمانت ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہی وہ سجدہ ہے امام علی مقام کا. امام علی مقام سجدہ میں ہے. ظالم شمر نے تلوار اٹھائی، کائنات کانپ جاتی ہے. اعلان کر دیا جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین. تلوار چلی آپ کے گردن پر. سنان بن مالک خبیث نے آپ کی گردن سے سر اقدس کو جدا کر دیا. زمین کانپی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام حسین شہادت کی منزل سے پار ہو کر کے اپنے نانا کے حضور پہنچ گئے. ادھر امام علی مقام کا شہید ہونا تھا. امام علی مقام کی شہادت کے وقت یہ سب لوگ محسوس کرنے لگے کہ زمین ہل رہی ہے. یہ اپنے اپنے قدم کو ادھر ادھر لے جا رہے ہیں. سارے لوگ ہٹ گئے. کسی کے اندر ہمت نہیں کہ حسین پر اب کچھ اور حملہ کیا جائے. ان ظالموں کو جب تھوڑا سا وقفہ ملا، اس تھوڑے سے وقفے کے بعد ان خبیثوں نے، کسی نے حضرت امام علی مقام کا امامہ لے لیا، کسی نے تلوار کو لے لیا، کسی نے پٹکے کو لے لیا. آپ کی سواری پر قبضہ کر لیا گیا. ایک ہنگامہ مچا دیا گیا.
بالکل गर्द و गुबार में फौज के अंधेरे जुल्मात के तारीकियों में हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हों को छुपा लिया जाता है। हजरत इमाम अली मकाम की बहन हजरत ज़ैनब अपने खेमे से देख रही थी, जब सारे तरफ से फौजी जवानों का नरगा होता तलवारें बुलंद हुई तो इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ने आह खींची, ए मेरे परवरदिगार, मेरे भाई का इम्तिहान हो गया, ए मेरे मौला सब्र अता फरमा। हाय मेरा भाई शहीद कर दिया गया, मेरा भाई कत्ल कर दिया गया। खेमे की तनाबों को उखाड़ना चाहती है, शहरबानों ने पकड़ लिया। ए हुसैन इब्ने अली की बहन, तुम खेमों की तनाबों को ना पकड़ो, सब्र करो। यही पैगाम दे करके वो गए हैं, यही दस्तूर वो दे करके गए हैं। सब सिमट जाते हैं, सारी औरतें चीखने चिल्लाने लगती है, उनकी आहें बुलंद हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके साथ चंद बच्चे बच्चियां आपके अहलो अयाल हो, कोई मुसीबत आ जाए तो उनका रोना धोना सामने रख लो। कितना रोया है करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब ने, किस कदर आंसू बहाई हैं हजरत ज़ैनब, किस तरह से हजरत इमाम हुसैन की छोटी सी बच्ची सकीना तड़प तड़प करके जमीन पर अपनी पेशानी को रख रख करके अपने बाप को याद किया है। आबिद बीमार किस तौर पर शिद्दत बुखार में अपने बाप के लिए तड़प रहे हैं, किस तौर पर। और दूसरी औरत इमाम अली मकाम की मोहब्बत में तड़प रही है। उनका मुहाफिज कौन है, उनके दुपट्टों का रखवाला कौन है, उनके कानों की बालियों की हिफाजत करने वाला कौन है, उनके नामूस की हिफाजत के लिए अब तलवार उठाने वाला कौन है। आह बुलंद होती है, ए मेरे परवरदिगार हमें सब्र अता फरमा। आसिफ गैबी पुकारता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप जरा देखिए सब्र का कैसा पैगाम हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दे दिया, और जुल्म की गर्दन को सब्र से किस तरह से आपने काटा। हुसैन ने यजीद के मकसद को खाक में मिला दिया और इस्लाम के चेहरे को अपने खून की सुर्खी से मुनव्वर और रोशन कर दिया। अब क़यामत तक इस्लाम का चेहरा चमकता रहेगा। इस्लाम के चेहरे पर अगर कोई कालिक लगाना चाहे तो हुसैनी किरदार अदा करने वाले बहुत से लोग आ जाएंगे, हुसैनी किरदार अदा करने वाले बहुत से जवान निकल जाएंगे, हुसैनी किरदार अदा करने वाले बहुत से जवान अपने खून को पेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आओ जरा मुलाहजा करें, प्यारे हजरत इमाम अली मकाम की शहादत हो गई। अब शहादत होने के बाद ये जालिम लोग तो सरे अक़दस को अपने कब्जे में कर रहे हैं, लेकिन फौज का एक हिस्सा खेमे की तरफ बढ़ जाता है। बिल्कुल करीब थे, खेमे के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और जा करके इन जालिमों ने शिमर सबसे आगे आगे है कि हुसैन इब्ने अली के खेमे में चलो, जो कुछ मालो दौलत हो लूट लिया जाए। ये जालिम दाखिल होते हैं, मालो दौलत क्या ही था, कुछ नहीं था, चंद चीजें हैं। उन चंद चीजों पर इन जालिमों ने कब्जा कर लिया। चंद कपड़े हैं, उन कपड़ों को इकट्ठा कर लिया, कहा कि तुम सब लोग एक खेमे के अंदर हो जाओ। बकिया सारे खेमों को जला दिया गया। बड़ी तपिश पड़ रही है, बड़ी धूप थी, न जाने क्या सोच करके उन जालिमों ने एक खेमा दे दिया था। बकिया सारे खेमे जला दिए गए। जायजा लिया जा रहा है क्या है। एक जालिम ने हाथ बढ़ाया, हजरत सकीना की तरफ उनकी बालियों को कान से नोच लिया। हजरत सकीना मुजाहमत करती है, जालिम तलवार उठाता है। हजरत ज़ैनब मचल जाती हैं, रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला तू हिफाजत फरमा। वो जालिम पीछे हटा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इन लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद, तुम कौन हो? मैं अली इब्ने हुसैन हूँ। तुम क्यों नहीं मैदान में आए? तुमको हुसैन ने छोड़ दिया। मैं बुखार में था, वरना अपने बाप के कदमों पर मैं सबसे पहले कुर्बान हो जाता। तो ठीक है, अब भी तुमको कुर्बान कर दिया जा रहा है। तलवार बुलंद होने वाली थी कि तब तक हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी और हजरत ज़ैनब ने कहा, ओ नाबकारो, क्या तुम नस्ले मुस्तफा को एकदम दुनिया से खत्म कर देना चाहते हो? ओ नहनजारो कूफी गद्दारो, अगर ऐसा हो गया तो फातिमा की बेटी ज़ैनब अभी है मैदान में। करबला में कयामत आने से पहले कयामत आ जाएगी। जालिम ज़ैनुल आबिदीन को तुझे मार देना है, अली इब्ने हुसैन को तुझे मार देना है, तो पहले हमें कत्ल कर दे। तब तक अम्र इब्ने साद पहुंच गया। अम्र इब्ने साद पहुंचा, फौजियों को डांटा, सब खेमा छोड़ो, सारे लोग यहां से निकलो, भागो। शिमर ने कहा कि हुसैन इब्ने अली की एक निशानी, अली इब्ने हुसैन बचे हैं जो बीमार थे, कहा इनको छोड़ दो, इनको मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब चूंकि किसी पास तालार वो था फौज का, उसकी बात कौन काटता। ये सारे के सारे लोग हट गए। अम्र इब्ने साद भी वहां से हट गया। हजरत ज़ैनब रो रही हैं, बच्चियां रो रही हैं, सारे के सारे लोग जितने बचे खुचे थे सब के सब रब की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं। इधर ये जालिम आया, असर का वक्त हो गया। हजरत ज़ैनब ने नमाज अदा की। जो लोग नमाज अदा किए, नमाज अदा किए, ये जालिम लोग भी आए और खुशी मनाने लगे। मगरिब का वक्त हुआ, अजान हुई। मगरिब के वक्त अजान होने के बाद इन जालिमों ने लाशों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो इनके फौजी जो मरे थे, अपने फौजियों को तो करबला में इधर उधर ले जाकर के वहीं दफन कर देते हैं,
लेकिन इमाम अली मकाम के जितने साथी थे, जितने शहीद हुए थे, और इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजे पाक खुद ये जालिम वहीं छोड़ देते हैं और रात भर ये जश्न फतह मनाते हैं, आपस में बयान करते हैं कि इस तरह से लड़ाई हुई है। फिर सोचते हैं यारो हम लोगों ने गजब कर दिया, अगर दुनिया भी ना मिली तो हुसैन को कत्ल करके हम लोगों ने तबाही मोल ले ली है। ये सारी बातें उन लोगों के जहन में आई, यहीं से बात कर रहे हैं, यहीं से इंतकाम खुदाबंदी शुरू हो गया है, यहीं से जहनो फिक्र बदलने लगा है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा करबला के मैदान में रखा है, शोहदा के जनाजे रखे हुए हैं। रात की तारीकी बढ़ती चली जाती है। जब रात का पिछला पहर आया तो थोड़ा सा सुकून हजरत ज़ैनब को मिला। हजरत ज़ैनब ने देखा कि दूर फौज के जवान हैं, उन तक तो मुझे जाना नहीं है, लेकिन लाओ करबला का जायजा ले लो, मेरे भाई का जनाजा कहाँ रखा हुआ है। हजरत ज़ैनब दबे कदमों चलती हैं, जैसे चंद कदम चली शहीदों की लाशों को देखा तो चीख तो बुलंद होने वाली थी, लेकिन अपने कलेजे को थामा। जब आगे बढ़ी तो देखती क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा है, एक आवाज आ रही है, बेटी ज़ैनब। तब तक उनको याद आ गया ये तो मेरे बाप हजरत अली की आवाज लग रही है। हजरत ज़ैनब मचल गई और आगे बढ़ना चाहती है, मगर कदम रुक जाता है। ए बेटी मैं कौन हूँ? ए ज़ैनब मैं तेरा बाप अली हूँ। हजरत ज़ैनब रो पड़ी, है मेरे बाप आप उस वक्त कहाँ थे जब आपका बेटा शहीद हुआ? जब आपके बेटे पर पानी बंद किया गया तब कहाँ आप थे? ए मेरे बाप आपने अपने बच्चे की हालत को देख लिया है। हजरत इमाम अली, हजरत इमाम हुसैन के वालिद गिरामी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए ज़ैनब मैं मौजूद था, मैं तुम्हारे नाना से इजाजत तलब कर रहा था कि या रसूल अल्लाह अगर हुक्म अता फरमा दें तो पहले तो मैं जिस्मानी ताकत से उखाड़ा था खैबर के किले को, मेरी रूहानी ताकत इतनी बढ़ी हुई है कि करबला की जमीन तहस नहस कर दी जाएगी। लेकिन ए बेटी ज़ैनब मैंने हुसैन के मक्तल को देखने के बाद भी हुसैन के लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अज्र, ए परवरदिगार हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को अज्र अता फरमा। ए ज़ैनब मेरा बेटा साबिर और शाकिर होकर के हम सबके पास आ गया है। तब तक आगे आप कदम बढ़ाती हैं, ये आवाज बंद हो गई, दूसरी आवाज आती है, ज़ैनब तुम सलामत रहो, तुम्हें अल्लाह सब्र अता फरमाए। तब तक आपको लगा कि जैसे ये मेरी माँ हजरत फातिमा की आवाज से पूछती हैं आप कौन हो, आवाज आती है, ए बेटी मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। इतना सुनना था, आप चीख पड़ी, अम्मी जान मैं रात की सियाही में अपने भाई का जनाजा देखने आई हूँ, आप कहाँ थी? हजरत फातिमा जन्नत की आवाज लग रही है, फरमा रही है, ए बेटी ज़ैनब मैंने तुम्हारे भाई के सारे हाल को मुलाहिजा कर लिया है, देखा है। ज़ैनब तुम आगे बढ़ो, अगर तुम देखोगी तो जहाँ तुम्हारे भाई का जनाजा रखा है वहाँ कंकर पत्थर नहीं है, वहाँ की जमीन साफ है। मैं अपने आंचल से साफ कर दी थी कि मेरा बेटा यही सोएगा। ज़ैनब मेरा बेटा साकिरो साबिर बन करके आया है दुनिया से और साबिरों शाकिरों का इमाम हो गया है। ज़ैनब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम्हें और इम्तिहान देना है। ज़ैनब भाई तो अभी तो तुम्हें और सब्र करनी है। आवाज बंद हो जाती है, हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, एक आवाज ऐसी आती है, ऐसा लगा ये नाना जान की आवाज है। एक नूर का समा बधा हुआ है, आपके जनाजे पाक पर आसमान से लेकर के जमीन तक नूर की बारिश हो रही है। हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, कौन आवाज आई? इमामुल अंबिया हूँ बेटी, तुम्हारा नाना हूँ। इतना कहना था, तड़प गई, अपनी पेशानी को जमीन पर रख दिया। ए नाना हुजूर जब आपके शहजादे की जुल्फें पकड़ कर खींची जा रही थी तब आप कहाँ थे? जब उस गर्दने पाक पर तलवार चलाई गई जिसको आप चूमा करते थे तब आप कहाँ थे? ए नाना हुजूर आपने अपने शहजादे के हाल को देख लिया है। आवाज आती है, बेटी ज़ैनब तुम सब्र करो, मैंने देख लिया है, मैं देख रहा हूँ। बेटी मेरा हुसैन इम्तिहान से गुजर गया है, बेटी अब मेरे हुसैन के लिए कोई कठिनाई नहीं है। बेटी मेरे हुसैन को रब ताला ने जो तख्तो ताज अता फरमा दिया है वो किसी के लिए मयसर नहीं है। बेटी मैंने ये पहले कह दिया था कि हुसैन जन्नती जमानों के सरदार हैं। बेटी हुसैन के लिए सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं, बेटी तुम सब्र करो। आवाज बंद हो जाती है। हजरत ज़ैनब सोचती हैं ये आलम अरवाह से, इन हमारे मुकद्दस नफूस कुदसिया की आवाजें थी, ये आलम अरवाह का नूरानी समा खत्म हो जाता है। हजरत ज़ैनब करीब जाती हैं, भाई के जनाजे को देखा, आंसू पोंछा, हाथ लगाया, चली आई। सर अक़दस तो है नहीं, वो यजीदी अपने कब्जे में लिए हुए हैं। आपका तने नूर है लेकिन वो भी जख्मों से चूर है, हर कदम सुबह का सफेदा फैल रहा है। हजरत ज़ैनब पहुंची, नमाज अदा करती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आवाज दी, फूफी जान मुझे भी सजदा करा दो, मुझे भी सहारा दे दो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को सहारा दिया गया, उठ करके तयम्मुम करते हैं, नमाज अदा फरमाते हैं। यही तो बाप का पैगाम था कि बीमारी में भी तुम खुदा को न भूलना। यही तो बाप का पैगाम था कि किसी मोड़
पर खुदा को न भूलना। इतने मुसीबतों के पहाड़ आए हैं मगर वो खुदा को भूल नहीं रहे हैं। हम और आप किस तरह से हुसैनी बनने का दावा कर रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो इबादत से हमें बददिली पैदा हो जाती है। हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत हो जाए तो मस्जिद में जाना हम छोड़ देते हैं। हमारे ऊपर थोड़ी सी दुश्वारियों का सामना हमें करना पड़े, दुश्वारियां आ जाएं तो तरह तरह के वसवसे हमारे दिलों में पैदा होते हैं। लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज़े फज्र अदा की है, सूरज तुलू हो रहा है लेकिन आज उसकी शुआएं शर्मीली दिखाई दे रही हैं। ये जालिम लोग सो सो करके उठे, रात भर बड़े ऐशो इशरत में रहे। सवेरे सवेरे हजरत इमाम अली मकाम का मुकद्दस सर नेज़े पर लेते हैं। हुरमला खूली मरदूद अपने नेज़े पर हजरत इमाम अली मकाम का सर रखता है। तमाम शुहदा में सबसे पहले सर अक़दस इमाम अली मकाम का है जो नेज़ा पर चढ़ा। किसी का सर न तो मकाम उहद में नेज़ा पर चढ़ा था, न मकाम बद्र में नेज़ा पर चढ़ा था, न मकाम सिफ़ीन पर सर नेज़ा पर चढ़ा था, बल्कि कुरान नेज़ा पर चढ़ाया गया था। मैदान नैनवा में इमाम अली मकाम का सर नेज़ा पर चढ़ाया जा रहा है। दुनिया का ये वो पहला शहीद है जिसका सर नेज़ा पर चढ़ाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। आप जरा उस शाम को देख लो जो शाम आज ही वाली शाम थी। आज आशूरा का दिन गुजरा, 10 मुहर्रम की तारीख गुजर गई, यही वो शाम है जिस शाम की सारी शामतें आपके सामने रखी जा रही हैं, जिस शाम का सारा मामला आपके सामने रखा जा रहा है। ये शाम गम अंदोह लाई थी, ये शाम एक अजीब रिक्कत लाई थी, ये शाम टूटे हुए दिल थे। उन टूटे हुए दिलों पर मरहम क्या रखती बल्कि उन टूटे हुए दिलों पर और जख्मकारी हो रही थी। ऐसी शाम करबला की आई थी। करबला के मैदान में शाम गुजर गई है, सुबह का उजाला फैला है। ये सारे के सारे लोग, तमाम खवातीन को, सैयदजादियों को जो बचे खुचे थे, ऊंटों पर सवार कर लेते हैं। नंगी ऊंट की नंगी पीठों पर सवार किया जाता है। अगर किसी को कुछ गिरने का अंदेशा होता है तो ये जालिम बांध देते हैं रस्सियों से और अपने पीछे पीछे कह देते हैं। फौज का एक दस्ता मुतय्यन हो जाता है। हजरत इमाम अली मकाम का सर अक़दस खूली लेकर के इब्न ज़ियाद के दरबार में कूफा चल पड़ता है। ये जालिम चले, शाम पहुंचने में हो गई। जब शाम हुई तो और फौजियों ने कहा कि जिन लोगों के मकानात यहाँ हैं वो तो कूफा में चले जाएं अपने अपने मकानों पर, और सवेरे सवेरे इकट्ठा होकर के खूली के मैदान मकान के सामने फिर जुलूस की शक्ल में निकाल करके हुसैन इब्न अली का सर कूफा के गवर्नर हाउस में इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया जाएगा। ये ऐलान हुआ। खूली भी अपने घर सर अक़दस को लेकर के चला गया। ये जालिम जैसे हजरत इमाम अली मकाम का सर लेकर के अपने घर के अंदर पहुंचा, लुटा पुटा काफिला वहीं रोक दिया जाता है। इन सारे लोगों को फिर सिस्कियां बच जाती हैं, फिर ये रोने लगते हैं कि अब देखो कूफा के मैदान में हमारे साथ क्या किया जाता है। करबला के मैदान में तो इस तरह से इन जालिमों ने नामूसे रिसालत पर हमला किया है, और अब कूफा की गलियों में देखो हमारे लिए किस तरह से ये कारनामा अंजाम देते हैं। सिस्कियां बच गई हैं, रो रहे हैं, आंसू तो रह नहीं गए, आंसू खुश्क हो गए हैं। एक दर्द भरा दिल है, गमों का पहाड़ हाथों में है, सब्र शुक्र का दामन अपने हाथ में लेकर के रात गुजार रहे हैं। ये खूली जालिम जैसे अपने घर में पहुंचा, इसकी बीवी ने पूछा क्या हुआ, तुम सब लोग तो जा रहे थे कुफ्फार से लड़ने के लिए। कहा कुफ्फार से लड़ने के बजाय हुसैन इब्न अली से मुठभेड़ हो गई। कहा कौन हुसैन इब्न अली? सरकार के दामाद हजरत अली के शहजादे हजरत हुसैन। कहा हाँ। कहा वो कहाँ मिल गए? कहा करबला के मैदान में मिल गए, हुकूमत की बगावत करके कूफा की तरफ आ रहे थे, हम सबको हुक्म हुआ, हम लोगों ने करबला के मैदान में घेर लिया उनको, और घेर करके उन्हें कत्ल कर दिया, ये उनका सर लेकर आया हूं। तब तक बीवी चीख पड़ी, उसने कहा खबीस जालिम, तू कितना बड़ा जालिम है, फातिमा के शहजादे का सर काट करके तू घर के अंदर लाया है, तेरा घर उजड़ जाए, तेरा घर तबाह हो बर्बाद हो जाए। उसने कहा एक नेक बीवी का काम नहीं है। तो इसने भी कहा कि जालिम तेरा काम यह नहीं था कि दुनिया के इंसानों में इतना अच्छा इंसान जिसका सर तूने काट दिया है, जिनका चेहरा कोई देख ले तो नजात का परवाना मिल जाए, जिनसे मोहब्बत कोई देख कर ले तो नजात का परवाना मिल जाए। जालिम तो अपने घर में लेकर के सर को आया है, तेरा घर अब हमारे लिए नहीं है। वो जालिम बैठ जाता है। रात गुजरती चली जा रही है, बीवी भी थोड़ी देर तक सोच करके बैठ जाती है। ये जालिम दिन भर का थका मादा था, थोड़ा सा खाना वाना खाया, सो गया। जैसे ये सोया तो बीवी उठी, और उठने के बाद उसने सर इमाम को गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद घर में खुशबू थी, खुशबू लगा दिया। एक अच्छा सा कपड़ा ला करके रख देती है, उस पर सर इमाम को रोने लगती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हिजाब दूर हो जाता है, पर्दा हट जाता है।
उसने देखा कि आसमान से लेकर के सरे इमाम तक अनवार और रहमत की बारिश हो रही है, नूर की एक लड़ी लगी हुई है। रो रो करके अर्ज करती है, सुबह का सफेदा फैला, खूली जब जागा। और उसने कहा अब मैं इस सर को लेकर के फौजियों में जा रहा हूँ और हम सारे फौजी फिर गवर्नर हाउस में जाएंगे। खूली ने कहा जा तू सर को फौजियों में लेकर के जा। उसने नकाब ओढ़ा और उसने कहा जा तेरा घर बर्बाद हो, अब मैं तेरे लिए नहीं हूँ। उसने बहुत समझाया बुझाया, सोचा कि औरत की जात है, अभी थोड़ी दूर जा करके वापस आ जाएगी खफा हो करके। लेकिन खूली तो सरे इमाम को लेकर के यजीदी फौजियों के साथ अब कूफा की गली में दाखिल होने वाला है, गवर्नर हाउस में जाने वाला है। मुर्रखीन बता रहे हैं जब खूली वापस आया था तो इसने अपने घर में अपनी बीवी को नहीं देखा। पूरी जिंदगी पता लगा लिया कहाँ मेरी बीवी गई, कुछ नहीं पता चला, कोई नहीं जान पाया, कोई मौरिख जान ही आज तक नहीं पा रहा है कि सरे इमाम को जब नेज़े पर खूली की बीवी ने सुबह सुबह देखा था तो नकाब ओढ़ करके उसके घर की बर्बादी के लिए बददुआ करती हुई निकल गई थी। और उसने कहा था इस घर का मुंह नहीं देखूंगी, जिस घर में हुसैन इब्न अली का सर लाया गया हो काट करके, ये घर अब हमारे लिए नहीं है, ये घर तो जहन्नम से भी बदतर है। उसने कहा था ए बीवी तुम जरा अपने बच्चों को देखो। कहा हुसैन इब्न अली के बच्चों से तेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, ले तू अपने बच्चों को ले ले। ना मुझे तेरे बच्चों को चाहिए ना मुझे घर चाहिए। वो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कहाँ वो नेक बीवी निकल गई। नजात का परवाना मिल गया उस नेक बीवी को मोहब्बत के सदके में। आप जरा देखो यही तो यजीद की शिकस्त है। इमाम अली मकाम के सरे अक़दस को ये जालिम लोग लेकर के कूफा के मैदान से मगर मैदान करबला से कूफा की गलियों में पहुंच गए हैं। कूफा की गलियों में इन जालिमों ने घुमाना शुरू कर दिया। ये घुमा रहे हैं और घूम घाम करके जब गवर्नर हाउस के पास पहुंचे सरे इमाम को लेकर के गए, तख्त पर रख दिया। तख्त के किनारे इब्न ज़ियाद मरदूद बैठा हुआ था, ये गवर्नर बन करके बैठा है। सारे लोगों को जमा कर लिया, सारे लोग जमा हो गए। जैसे सारे लोग जमा हुए इसने अपने हाथ में छड़ी ली और इमाम अली मकाम के चेहरे की तरफ जैसे बढ़ाया तो एक सहाबी बैठे थे हजरत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ करके खड़े हो गए। कहा जालिम ओ मरजाना के बेटे तू अपनी छड़ी हटा ले, रसूल के नवासे के मुंह पर तू छड़ी लगा रहा है। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है रसूलुल्लाह हुसैन इब्न अली के इस लबहाए पाक को चूमा करते थे। इतनी बोली थी उसने अपनी छड़ी को बुलंद किया। कहा तुम बूढ़े सहाबी ना होते तो अभी मैं तुम्हें कत्ल कर देता। आपने फरमाया जालिम तू बुढ़ापे का इतना लिहाज कर रहा है, तू सहाबियत का क्या लिहाज करेगा जब नवासे रसूल का तूने लिहाज नहीं किया। यही तो हजरत इमाम हुसैन की जीत है और यही तो यजीद की हार है कि जालिम के सामने हक बोली बोलते रहना, चाहे जान दे देनी पड़े, चाहे चोटें सहनी पड़े, मगर हक अपनी जबान से कभी भी छुपाना नहीं, हक का बोलने में कभी भी दरेग ना करना। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल बयान कर रहे हैं मैंने अपनी आंख से देखा है कि रसूलुल्लाह इस जगह को चूमा करते थे। अब बताओ रसूल कौनैन के नामूस की भी हुर्मती इब्न ज़ियाद ने की है कि नहीं की है? इब्न ज़ियाद ने जुल्म किया है कि नहीं किया है? इब्न ज़ियाद जालिम कहता है हुसैन अगर दावा न करते तो इस तरह से कत्ल क्यों किए जाते? जवाब दिया जाता है हुसैन ने दावा नहीं किया था, ये रब की मशीयत है, मर्जी है, जो होना था वो हो गया, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। इब्न ज़ियाद ने सारे लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आखिर हुसैन इब्न अली के कुछ अपराध बचे भी हैं। कहा हाँ बचे हैं। कहा कौन? कहा उनकी बहन ज़ैनब हैं और भी औरतें हैं, कुछ बच्चियां हैं, उनका एक लड़का बीमार था वो भी बचा है। ठीक है हुसैन की बहन कौन है? तब तक पर्दे के आड़ से आवाज आती हुसैन इब्न अली की बहन मैं हूँ ज़ैनब। कहा ज़ैनब तुम्हारा नाम है? कहा मेरा नाम ज़ैनब है। कहा तुमने अपने भाई की किरदार को देख लिया? हजरत ज़ैनब ने फरमाया मैंने अपने भाई के मर्तबे को पहचान लिया। कहा तुम्हारे भाई को मर्तबा मिला? कहा मेरे भाई को मर्तबा मिला है। तुम्हें जुल्म का दर्जा दिया गया है और मेरे भाई को शहादत का दर्जा दिया गया है। तुम जालिम के रूप में हो गए और जालिम की सजा कुरान ऐलान कर रहा है वो जहन्नम में जलते रहेंगे और शहीद के लिए कुरान ऐलान कर रहा है वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। हज़रत ज़ैनब जब कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू करती है तो वो जालिम कहता है कि ज़ैनब कितना तेज ज़हन है, इसलिए कि ये अली की बेटी है, हुसैन की बहन है। ज़ैनब तुम्हें क्या चाहिए? हजरत ज़ैनब ने फरमाया कूफी गद्दारों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कूफी बेवफाओं से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई के साथ इन लोगों ने गद्दारी की है, हमारे खानदान के नौजवानों को इन लोगों ने शहीद किया है हुकूमत और इक़्तिदार की लालच में। अब हमसे ये पूछते हैं क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरी दौलत तेरी सरवत और तेरी रजा को हम पांव से उड़ा देती हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे भाई कहाँ मिलेगा? अब हुसैन हमें कहाँ मिलेंगे? अब हुसैन का चेहरा कहाँ देखने को मिलेगा?
जालिम कूफियों, तुम कयामत तक सुकून नहीं पा सकते हो। कयामत तक दुनिया के लोग सुन सुन करके तुम पर लानत बरसाते रहेंगे और तुम्हारी बेवफाइयों का चर्चा करते रहेंगे। तुम्हारी जमीन को सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हारे घर वालों को सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए कि तुमने नामूस मुस्तफा के साथ खिलवाड़ किया है, हुसैन इब्ने अली पर जुल्म किया है। हजरत ज़ैनब की तकरीर सुन करके सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग वहीं इख्तिलाफ कर बैठते हैं जो दमदम में मोहब्बत का दावा करते थे। थोड़ी देर में मोहब्बत का जोश उभरता था, थोड़ी देर में मोहब्बत का मामला खत्म होकर के अदावत के लिए तलवारें उठ जाया करती थी। सारे लोगों पर सन्नाटा छाया है। बात यह तय हुई कि यजीद का काम तो तमाम हो गया, लेकिन ये लश्करो सिपाह इमाम हुसैन के सर अक़दस को लेकर के अब शाम की तरफ जाए, यजीद के दरबार में जाए। अब यजीद जो वहां से हुक्म नाफिज करेगा उस पर अमल किया जाएगा। हुसैन इब्ने अली का सर कलम कर दिया गया, उनके साथियों को तो मार दिया गया। ये वो जालिम लोग आपस में कह करके एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग खत्म हो जाती है, तैयारी का मामला सामने आता है कि इन सारे सरों को लेकर के यजीद के दरबार में पेश कर दो। ये सर क्यों पेश किया जा रहा था? सारे लोगों को डराने धमकाने के लिए कि जब लोग देखेंगे कि हुसैन इब्ने अली जैसे जमा मर्द, पाक, शरीफ, आबिद, जाहिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का मुकद्दस सर काटने में इन लोगों ने दरेग नहीं किया, तो दूसरों को अब ये कितनी सजाएं देंगे। इसलिए कोई हिम्मत ना करे खिलाफत के ताल्लुक से बोलने में, और हुकूमत का इख्तिलाफ कोई ना करे। उन जालिमों का ये मकसद था जो सर इमाम हुसैन को इस तरह से गलियों में घुमा करके और अब दमिश्क की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमीर शाम, जिसको यजीद कहा जाता है, वो अपने आप को अमीर कहलाता था। दमिश्क शहर में जाया जाता है, दमिश्क शहर में उसका तख्त है। दमिश्क शहर की तरफ रवानगी हो जाती है। लुटा पुटा काफिला है, सारे के सारे लोग मुजमहिल हैं, चेहरों पर उदासी छाई है। और जब कूफा की तरफ से करबला की तरफ आए थे, करबला की तरफ से कूफा की तरफ आए थे, फिर कूफा की तरफ से अब दमिश्क की तरफ जा रहे हैं, पुकार होती है, चीख बुलंद होती है, मेरे परवरदिगार ये तेरी क्या मशीयत है, हम ऐसे ही घुमाए जाते रहेंगे, हमको ऐसे शहर से शहर घुमाया जाता रहेगा। हजरत ज़ैनब फिर सब्र की तलकीन करती हैं। ये सारा काफिला लेकर के ये जालिम लोग दमिश्क की तरफ रवाना हो जाते हैं। चलने के बाद एक ऐसा मकाम आया जिस मकाम पर शाम हो गई। इन जालिमों ने कहा यहीं ठहर जाओ, और यहीं ठहरने के बाद रात गुजार लो, जब दिन का उजाला हो तो पहाड़ों का रास्ता तय करके जंगलों का फिर चला जाए शाम में और दमिश्क शहर में चला जाए। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जालिम लोग ठहर गए। उसी करीब में एक गिरजाघर था। गिरजाघर का पादरी ईसाई था। निकलने बाद कहा तुम लोग कौन हो? कहा अमीर शाम यजीद के फौजी हैं। कहा अमीर माविया का इंतकाल हो गया? कहा हाँ। कहा उनका बेटा यजीद बैठा है तख्त पर? कहा हाँ। कहा यह फौज का नक्शा क्या बता रहा है? कहीं जंग पर थे? कहा हाँ जंग पर थे। कहा कहा करबला के मैदान में जो गुफा के करीब है जिसको मैदान नैनवा कहा जाता है। कहा यह मामला क्या है? कहा यह हुसैन इब्ने अली और उनके साथियों के सर हैं। कहा कैसे? कहा हम लोगों ने काट दिया है। कहा क्यों? कहा हुकूमत की बगावत उन्होंने की थी। कहा किसकी हुकूमत की बगावत? कहा यजीद की हुकूमत की बगावत। उसने कहा जालिमों हमारे गिरजाघर के करीब से दूर हो जाओ। तब तक एक लश्करी ने अपनी तलवार को बुलंद किया। कहा देखते हो हम अमीर शाम के फौजी हैं, फौज से तुम टकराओगे। पादरी थोड़ी देर तक कुछ सोचा, अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद फिर बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद कहा ये बताओ तुम्हारी फौज का मालिक कौन है? किसी ने इशारा किया ये है। सरे इमाम खूली के पास था। कहा खूली के पास इमाम हुसैन का सर है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? पादरी ने कहा सिर्फ हमारी नियत यह है कि तुम लोग रात गुजारना चाहते हो। हाँ तो रात गुजारने के लिए एक काम करो कि सरे इमाम को रात भर के लिए मुझे दे दो। कहा तुम्हें दे दें, अगर तुम गायब कर दो तो? कहा हम गायब नहीं करेंगे, हमारे मकान के करीब आप हो, गिरजाघर के करीब हो, इतने फौजी हो तादाद में, हम गायब कैसे कर देंगे? अगर तुम्हें यह अंदेशा है तो तुम जो कहो देने के लिए तैयार हूं। कहा तुम दिरहम दीनार दे सकते हो? कहा दे सकते हैं। 80,000 दिरहम उस पादरी ने अपने गिरजाघर के अंदर से निकाल कर एक गठरी की शक्ल में ला करके कपड़े में बांध कर पेश कर दिया और कहा यह सब रख लो तुम लोग, जब मैं सुबह तुम्हें सर वापस करूंगा तो सर भी ले लेना और यह 80,000 दिरहम भी ले लेना। ये दुनिया के लालची तो थे ही, दौलत के लिए तो सब कुछ किया ही था। जालिम राजी हो गए। इमाम अली मकाम का सरे अक़दस लिया पादरी, गुस्ल दिया, खुशबू लगाया, तख्त पर चादर बिछाई, उस पर रख दिया। रात का सन्नाटा गुजरता चला जा रहा है। वो असर इमाम की जियारत कर रहा है, सोच रहा है ये हुसैन इब्ने अली हैं, ये हुसैन इब्ने अली हैं, इनका चेहरा कितना अच्छा है।
जालिमों ने इनको शहीद कर दिया, तब तक पादरी की निगाह पड़ती है कि उसके मकान की छत शक हो जाती है और नूर की बरसात हो रही है, नूर की एक लड़ी बस जाती है। तब तक पादरी ने कहा, हुसैन गवाह हो जाओ, आप जिंदा हो, आपके नाना जिंदा हैं और आपके नाना जो दीन इस्लाम लाए, दीन इस्लाम बरहक दीन है। मैं आपके रूबरू अब कलमा पढ़ रहा हूँ और मुसलमान हो रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरे इमाम के सामने पादरी ने कलमा पढ़ लिया। यही तो हुसैन की जीत है और यही तो यजीद की हार है। इनकी तलवारें बाहर पड़ी हैं, ये बाहर सो पड़े हैं, ये दिरहम दीनार की लालच में पड़े हुए हैं, मगर हुसैन का सर अक़दस रखा हुआ है। तो पादरी कलमा पढ़ता चला जा रहा है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो हुसैन का कटा हुआ चेहरा देख ले तो इस्लाम बढ़ रहा है, जो इमाम हुसैन की जियारत कर ले तो इस्लाम बढ़ रहा है। आप जरा मुलाहजा फरमाइए, इमाम अली मकाम के सर अक़दस के सामने राहिब इस्लाम कबूल कर लेता है। और जब सुबह का सफेदा नमूदार हुआ और इन लोगों ने कहा कि लाओ सरे इमाम को हमें दे दो, तो हजरत इमाम अली मकाम के सरे अक़दस के साथ साथ उसने कहा था, अब मुझे पादरी ना कहना, अब मुझे अब्दुल्लाह कहना, मैं इस्लाम ला चुका हूँ, मैंने इनके नाना का कलमा पढ़ लिया है। इतना सुनना था, सारे लोग हक्के बक्के रह गए। और जब उन ठीकरियों जब गठरी को खोला कि हम दिरहम दीनार पाए हुए हैं, तो 80,000 दिरहम के जो ठीकरियों के शक्ल में से पुष्ट पर कुरान की आयत लिखी हुई है, जिसका मजमून यह है कि अनकरीब जालिम लोग जान जाएंगे कि इनको किस करवट करके जन्नत में जहन्नम में ढकेला जा रहा है और डाला जाएगा। ये सारे के सारे लोग वहीं पर मायूस हो गए। वहीं पर इमाम हुसैन की करामत को देख लिया कि ये सोना लिए थे, सोना मट्टी हो जाती है, पत्थरों की ठीकरियां सोना बन जाता है। इमाम हुसैन के सर से राहिब कलमा पढ़ लेता है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो हजरत इमाम अली मकाम है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। और कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यही से बयान तो मैं इंशाअल्लाह कल करूंगा कि दमिश्क से यजीद के दरबार में सर पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, फिर मदीना शरीफ पर कैसे चढ़ाई हुई, फिर मक्का शरीफ की भी हुर्मती कैसे की गई, यजीद कैसे मारा गया, उसके सारे फौजी कैसे मारे गए। ये महफिल नूर जिंदाबाद, जिंदाबाद।